غسل کے آداب کیا بیان کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ چنانچہ غسل خانے میں پہلے بایاں پیر داخل کرنا چاہیے، یہ غسل کے آداب فقہا نے نقل کی ہے۔ چنانچہ بحث جو ہے فتاوی حدیثیہ کے صفحہ 61 پر نقل کی گئی ہے۔ نمبر 2، حتی الامکان سطر کو چھپانا چاہیے، سطر کو ڈھک کر کے ہی رکھنا چاہیے، اگرچہ اکیلا ہی نہا رہا ہو لیکن جائز اور درست ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن آداب کے سلسلے میں یہی ہے کہ سطر کو چھپا کر کے رکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ بحث جو ہے الادب فی الدین صفحہ 54 پر اس کو نقل کی ہے۔ نمبر 3، پردے کے ساتھ غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری کے اندر روایت ہے، قالت ام ہانی ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته یغتسل بفاطمۃ تسترہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الغسل باب التستر فی الغسل من الناس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42، حدیث نمبر 280 ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ نے چادر وغیرہ سے آڑ کر رکھی تھی۔ اس لیے آج کے دور میں چونکہ غسل خانہ ہو چکا ہے تو اس غسل خانے کے اندر پردے کے اہتمام کے ساتھ غسل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر کوئی آدمی برہنہ ننگے ہو کر کے غسل کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو بھی جائز اور درست ہے۔ نمبر 4، شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا چاہیے۔ یہ دونوں ہاتھ ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو یہاں گٹے تک جو ہے دونوں ہاتھوں کو خوب اچھی طریقے سے دلک اور رگڑ کر کے دھو لینا چاہیے۔ چنانچہ بخاری کی روایت قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ فبدأ فغسل یدیہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، حدیث نمبر 248 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو ابتداً دونوں ہاتھ دھوتے تھے، تو ہمیں بھی غسل کرنے کے وقت دونوں ہاتھ کو پہلے دھو لینا چاہیے۔ نمبر 5، شرمگاہ کو دھو لینا۔ جب ہم غسل خانے کے اندر گئے تو شرمگاہ کو دھونے کا اہتمام کر لینا چاہیے پہلے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، قد ورد فی حدیث میمونہ ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الغسل باب الغسل مرۃ واحدہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، حدیث نمبر 257 ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیا۔ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کا اس سلسلے میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی کے اندر ہے۔ نمبر 6، بدن پر کوئی ظاہری گندگی ہو تو پہلے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہ بھی اسی حدیث سے بات مترشح ہوتی ہے جو میں نے ابھی بخاری کی روایت حضرت میمونہ کی پڑھی ہے۔ نمبر 7، غسل سے پہلے سنن وضو کی رعایت کرتے ہوئے غسل کر لینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم نماز والا وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ وضو غسل کرنے سے بھی پہلے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ بخاری کی روایت اس سلسلے میں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، حدیث نمبر 248 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو ابتداً دونوں ہاتھ دھوتے، پھر ایسا ہی پورا وضو کرتے جیسے نماز کے لیے ہم وضو کیا کرتے ہیں۔ نمبر 8، قبلہ رخ ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ قبلے کی طرف چہرہ کر کے یا منہ کر کے یا بدن کر کے اس کی طرف غسل نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس بحث کو جو ہے حلبی کبیری کے صفحہ 51 پر نقل کی گئی ہے۔ نمبر 9، اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو اخیر میں دھونا چاہیے۔ جب کسی غسل خانے میں ہم غسل کر رہے ہیں اور وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، پائپ لائن خراب ہے یا پانی نہیں جا رہا ہے یا کوئی اور صورتحال ہے، پانی جمع ہو رہا ہے، تو نہانے کے بعد جو ہے
पैर के हिस्से को, निचले हिस्से को बिल्कुल आखिर में धो लेना चाहिए। चनांचे बुखारी के अंदर रिवायत है, क़ालत मैमूना वज़ात लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअन यग़तसिलु बिही सुम्मा तनहा मिन मक़ामिही फ़ग़सला क़दमहू। इस तरीके की क़दमैही, ये बुखारी की रिवायत है, किताब बाब तफ़रीक़ुल गुस्ल वल वज़ू, जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 40, हदीस नंबर 265 है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल करने के लिए पानी रखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से हटकर अपने कदम मुबारक को धोया। तो इससे मालूम हुआ कि वहाँ पानी जमा हो जाता हो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हट करके फिर जो है जब गुस्ल फरमा लिया तब आपने आखिर में पैर को धोया है। नंबर 10, ज़्यादा पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस कदर ज़रूरत हो नहाने की उसी कदर पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। पानी ये अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इसका क्या नाम ख़ास ख्याल रखना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्न माजा के अंदर रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज्ज़िउ मिनल वुज़ूइ मुद्दन व मिनल गुस्लि साअन। मुद्द और सा ये एक पैमाना है, जिसको मैंने अपनी किताब क्या नाम है सिराज नबी बिशरह शमाइल तिरमिज़ी के अंदर काफ़ी तफसील के साथ नकल किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। चुनांचे इब्न माजा किताब तहारा बाब माजा फ़ी मिक़दारिल वज़ू वल गुस्ल मिनल जनाबा, सफ़ा क्या नाम है 24, हदीस नंबर 27 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वज़ू में एक मुद और गुस्ल में एक सा पानी काफ़ी हो जाता है। चुनांचे सा कहते हैं 3 किलो 149 ग्राम को, सा कहते हैं 3 किलो 149 ग्राम 280 मिलीग्राम, ये एक सा शुमार किया जाता है। 3 किलो 3 लीटर हम कहते हैं, 149 ग्राम और 280 मिलीग्राम। तो अगर इसको समझना है तो यूँ कह लीजिए 3.5 किलो, 3.5 लीटर पानी, 3.5 लीटर पानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा लिया करते थे। और मुद कहते हैं 787 ग्राम 32 मिलीग्राम, इतना पानी 787 ग्राम 32 मिलीग्राम, यूँ कह लीजिए आज के दौर में समझने के लिए कि पौना लीटर पानी, पौना लीटर पानी, ये समझने के लिए कह लीजिए। या अल-औज़ानुल महमूदा, उसके सफ़ा 39 पर ये बहस जो है मुद और सा, ये पूरी किताब ये इसी सिलसिले में लिखी हुई किताब है, ये अल-औज़ानुल महमूदा। मैंने भी इसी किताब का हवाला दिया है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। मेरी किताब का नाम है शमाइल तिरमिज़ी बिशरह शमाइल सिराज नबी बिशरह शमाइल तिरमिज़ी, मेरी किताब का नाम है। बहरहाल नंबर 11, सर को बकिया जिस्म से पहले धोना। जब हम दाएं बाएं पानी बहाते हैं तो दाएं बाएं पानी बहाने से पहले सबसे पहले सर को धो लेना चाहिए। चुनांचे बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल जाबिर कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याख़ुदु सुलुस अकुफ़ा फ़युज़हा अला रासी सुम्मा यफ़ीज़ु अला साइर जसदिही। इस तरीके की इबारत जो बुखारी किताब गुस्ल बाब मन अफ़ादा अला रासी सलासन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39, हदीस नंबर 256 है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चुल्लू पानी लेते थे और अपने सर मुबारक पर बहाते थे, फिर अपने बकिया जिस्म पर बहाते थे। इसलिए पहले सर को धोना चाहिए, उसके बाद दीगर आज़ा को धोना चाहिए। नंबर 12, सर के बाद पहले दाहिनी जानिब फिर बाएं जानिब पानी डालने का एहतमाम करना चाहिए। दाहिनी जानिब राइट साइड है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड है, उसका जिस्म के दीगर हिस्से पर पानी को बहाना चाहिए। चुनांचे बुखारी की रवायत है, क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्ना इदा असाबा इहदाना जनाबतुन अखज़त बियदिहा सलातन फ़ौक़ रअसिहा थुम्मा तअख़ुज़ु बियदिहा अला शिक़्क़िहल अयमन। इस तरीके की इबारत जो है बुखारी किताबुल गुस्ल बाब मन बदा बिशिक़्क़िल अयमन फ़िल गुस्ल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 41, हदीस नंबर 277 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हम में से जब किसी को क्या नाम है जनाबत लाहिक हो जाती तो अपने दोनों हाथों से अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाती, फिर हाथ में पानी लेकर दाहिनी तरफ और दूसरी मरतबा पानी लेकर बाईं तरफ पानी को बहाया करती थी। अब यहाँ ये तो क्या नाम है आपके सामने मैंने 12 आदाब जो है बयान किए हैं गुस्ल के, अभी और भी मज़ीद है थोड़े से, उसको भी देखें। यहाँ एक मसले की वजाहत मैं ये भी करते जाऊँ कि फ़र्ज़ गुस्ल में बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाना ये ज़रूरी और
ये ज़रूरी अमल है। फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर मसलन जनाबत है या नाइट फॉल हो गया है, इहतिलाम हो गया है या और भी किसी सूरत में उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, तो फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर जो है पानी का पहुँचाना बालों की जड़ों के अंदर ये ज़रूरी है। चुनांचे इस सिलसिले में अबू दाऊद की रवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मर रजुलु फलयंसिर रअसहु फलयुग़सिलहु हत्ता यबलुग़ उसूल अश-शअरी। ये रवायत जो है अबू दाऊद किताब अत-तहरा बाबुल मरा हल तनक़ुज़ु शअरुहा इंदल गुस्ल के तहत जो है नकल किया, पहली जिल्द सफ़ा 33 हदीस नंबर 355 पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहा मर्द, तो ये अब बहुत लंबी रिवायत है, मैंने मुख्तसर पढ़ी है। रहा मर्द तो अपने सर के बालों को खोल दे और उसे धोए यहाँ तक कि बालों की जड़ तक पानी पहुंच जाए। ये मसले की तफसील थी। नंबर 13, पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाने का एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा अना फ़उफ़ीज़ु अला रअसी सलासन व अशारा बियदिही किलतैहिमा। ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल गुस्ल बाब मन अफ़ाद अला रअसी सलासन, जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 39 हदीस नंबर 254 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबत्ता मैं तो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाता हूँ और अपने दोनों हाथों से इशारा फरमाया। इसी तरीके से यहाँ इस तरीके से जो है पहले सर, फिर दाहिना कंधा, बायां कंधा, इस तरीके से आप जो है इशारा करके फरमाया कि ऐसे ऐसे जो है मैं पानी बहाता हूँ अपने जिस्म पर। नंबर 14, गुस्ल के दरमियान दुआ वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। गुस्ल जिस वक्त किया जा रहा हो उस वक्त हम बस औकात और तो जो कहते हैं कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तौबा 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 इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, तो ये ज़िक्र अस्कार कोई दुआ को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप कहते तो अलग बात है, लेकिन एहतमाम नहीं करना चाहिए इसका। ये बहस जो हल्बी कबीरी के सफ़ा 52 पर नकल की गई है। नंबर 15, गुस्ल करते वक्त बातचीत नहीं करना चाहिए। चुनांचे ये बहस जो है अल अदब फिद्दीन उसके सफ़ा 54, हल्बी कबीरी सफ़ा 51 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 16, सलाम गुस्ल करते वक्त नहीं करना चाहिए, न सलाम करना चाहिए न सलाम का जवाब देना चाहिए। चुनांचे ये बहस भी अल अदब फिद्दीन सफ़ा 54 पर इसको नकल की गई है। इसी तरीके से नंबर 17, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। ये उस सूरत का हुक्म है जब कदीम ज़माने में गुस्ल खाने कच्चे हुआ करते थे, मिट्टी के बने रहते थे, तो चूँकि पेशाब करेगा वही जज्ब हो जाएगा। आप जब पानी से नहाएंगे तो फिर वो छींटा उड़ करके आपके जिस्म पर आएगा। लेकिन आज के दौर में जो क्या नाम है सीमेंटेड है, टाइल्स लगे हुए, लादी लगे हुए हैं, तो ऐसे गुस्ल खाने में भी एहतमाम करना चाहिए नहीं करने का। लेकिन अगर कोई आदमी करता है तो पहले फुर्सत में कि जो नाली है उसके मुँह पर करना चाहिए ताकि गंदगी वहाँ से चली जाए। लेकिन अगर कोई इधर उधर कर देता है तो करना दुरुस्त है, जायज़ है, जायज़ होने में कोई शक नहीं है। लेकिन पहला हुक्म ये है कि जब गुस्ल पेशाब किया है तो पहले उस पेशाब को खूब अच्छी तरीके से बहा दे, पानी मार करके फिर जो है गुस्ल करने का एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है, क़ाल अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन यबूल अर्रजुल फ़ी मुस्तहम्मा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, अबवाब तहरा बाब मा जाअ फ़ी कराहियतिल बौल फ़िल मुग़्तसिल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12 हदीस नंबर 21 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल खाने में पेशाब करने से मना फरमाया, इसलिए जो है इसका एहतमाम करना चाहिए कि गुस्ल खाने में पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए। नंबर 18, पहले गुस्ल खाने में से जब निकले तो पहले दाहिना पैर बाहर निकालना चाहिए। चुनांचे बहस जो है अल-फतावा अल-हदीसिया के सफ़ा 61 पर इसको नकल की गई है, वहाँ भी इस मसले की तफसील को देख सकते हैं। इसी तरीके से ये तमाम बहसें जो है मैंने मामूलात यौमिया गुस्ल के आदाब, किताब का नाम है सुनन व आदाब, ये मौलाना मोहम्मद अबू बकर मुस्तफ़ा पटनी की लिखी हुई किताब है। उसके मामूलात यौमिया गुस्ल के आदाब, उस किताब के सफ़ा 49 और क्या नाम है सफ़ा 50 और सफ़ा 51 पर ये बहस मुकम्मल नकल की गई है 3 सफ़े में। ये पूरी बहस जो है वहाँ पर भी देखी जा सकती है। और मैंने मुख्तलिफ़ किताबों का भी हवाला दिया। आप मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले जात में जहाँ मैंने हवाला दिया है उन किताबों को तलाश करेंगे तो वहाँ उन किताबों में भी ये सब आदाब मिल जाएंगे इंशाअल्लाह।